کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینٹا کلوز بار میں بیٹھا ہوا شراب پی رہا ہے۔ ایک اور بڑا سینٹا اس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم یہ کام کب سے کر رہے ہو؟ سینٹا جواب دیتا ہے مجھے خود یاد نہیں کہ میں کب سے سینٹا کا کام کر رہا ہوں۔ پھر سینٹا کہتا ہے کہ آج کل کے بچے بہت زیادہ شرارتی ہو گئے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا آخری کرسمس ہو۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ سینٹا اپنی زندگی سے تھوڑا بور ہو چکا ہے لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ راستے میں سینٹا بار کے مالک کو ایک تحفہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پوتے کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بار کی مالکن تھوڑا سا حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اسے میرے پوتے کا نام کیسے پتا چلا اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میرا پوتا بھی ہے۔ جب وہ سینٹا کو دیکھنے باہر جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سینٹا اپنی سواری میں بیٹھ کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ بار کی مالکن بہت خوش ہوتی ہے اور یقین نہیں کر پاتی کہ حقیقی سینٹا کلوز ہے۔ اگلے منظر میں ہمیں ایک فیملی دکھائی جاتی ہے جس میں ایک جوڑا اور ان کی بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ٹروڈی تھا۔ یہ لوگ ٹروڈی کی دادی کے گھر کرسمس منانے جا رہے تھے، یعنی اپنی والدہ کے گھر۔ جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو اندر کرسمس کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ خاندان کے کئی اور مہمان بھی آئے ہوئے تھے۔ اسی وقت خاندان کی سربراہ یعنی سب سے بڑی ممبر وہاں پر آتی ہے۔ وہ اپنی پوتی ٹریڈی سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے اور پورے خاندان کو کھانے کے لیے بلاتی ہے۔ اسی دوران سینٹا کلوز اپنی سواری کے ساتھ مختلف گھروں میں جا کر ضرورت مند بچوں کے لیے تحفے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹریڈی کے والدین اس کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے اور اسے بتایا کہ ہم یہ تحفہ تمہیں کرسمس کی رات سے پہلے دینا چاہتے تھے۔ جب ٹریڈی تحفہ کھولتی ہے تو اس میں ایک واکی ٹاکی ہوتا ہے یعنی موبائل جیسی ایک ڈیوائس۔ اس کے والدین کہتے ہیں کہ تم اس کے ذریعے صرف سینٹا کلوز سے بات کر سکتی ہو کیونکہ سینٹا کلوز آج رات بچوں کو تحفے دینے میں مصروف ہوگا، اس لیے وہ تم سے بات نہیں کر سکے گا، تم اسے پیغام بھیج دینا۔ یہ کہہ کر ٹریڈی کے والدین وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر وہ اپنی بیٹی کی آواز سنتے ہیں جو سینٹا سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی تحفہ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ میرے امی ابو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ اس کے والدین جو باہر کھڑے ہو کر یہ سن رہے تھے بہت جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اب سینٹا کلوز اپنی سواری کے ساتھ ان کے گھر آتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اس وقت ایک آدمی گھر کے کرسمس ڈیکوریشن کے لیے اندر آتا ہے لیکن وہ حقیقی کام کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ گھر کی سیکیورٹی کنٹرول روم میں جا کر ایک گارڈ کو بھی ہوش کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اور اس کی ٹیم چور تھے جو گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا اور وہ چور اپنے باقی ساتھیوں کو سگنل بھیجتا ہے جس سے سارے چور تیار ہو کر اپنی جگہ لے لیتے ہیں۔ ان کا لیڈر سکروج بھی آتا ہے جو پہلے ایک سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے اور پھر باقی گارڈ کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ بھی اندر آ جاتا ہے۔ گولیوں کی آواز سن کر سب جاگ جاتے ہیں اور گھر کے سارے افراد میں افراتفری مچ جاتی ہے، وہ بھی چھپنے لگتے ہیں۔ پھر ٹریڈی کی دادی اپنے 2 گارڈز کے ساتھ آتی ہے اور جب سکروج ان کے سامنے آتا ہے وہ دونوں باڈی گارڈز پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سے لڑ کر انہیں ایک ہی وار میں مار دیتا ہے۔ سینٹا کلوز جو یہ سب اوپر سے دیکھ رہا تھا ایک کمرے میں جا کر چھپ جاتا ہے لیکن وہاں سکروج کے آدمی اسے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سینٹا پر حملہ کرتے ہیں اور اسے گولی مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گولیوں کی آواز سن کر سینٹا کی سواری والے جانور ڈر کے مارے وہاں سے اڑ جاتے ہیں جس پر سینٹا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ سینٹا اس آدمی کو خوب مارتا ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ غلطی سے سینٹا خود بھی روشنیوں میں الجھ کر کھڑکی سے باہر گر جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہ چور مارا گیا ہے۔ جب سینٹا کھڑکی کے اندر دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ گھر کے تمام افراد کو قید کر لیا گیا تھا۔ پہلے تو سینٹا جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن پھر ان کی مدد کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور واپس اندر جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ٹریڈی کی دادی سکروج سے کہتی ہے کہ ایک بار میرے بھائی کو اغوا کیا گیا تھا جہاں میرے والد نے سیکیورٹی ٹیم بلائی اور اغوا کاروں کو ختم کر دیا۔ اس پر سکروج کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ یہاں سیکیورٹی ٹیم بھی آ سکتی ہے جو شاید آ رہی ہو۔ آگے سکروج کہتا ہے کہ وہ $300 ملین جو تمہارے قبضے میں ہے تمہارے گھر کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ رقم حکومت نے تمہیں غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے دی تھی لیکن تم نے کسی کو $1 روپیہ بھی نہیں دیا اور سارا پیسہ اپنے سیف میں رکھ لیا جو میں آج تم سے لینے آیا ہوں۔ سکروج اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں سیکیورٹی کیمرے لگے ہوئے تھے۔ وہاں سے وہ سیف کو چیک کرتا ہے لیکن پھر اسے نظر آتا ہے کہ ہمارا ایک ساتھی مارا جا چکا ہے جسے سینٹا کلوز نے قتل کیا تھا۔ اس کمرے میں ہم سینٹا کو دیکھتے ہیں جو فون کے ذریعے پولیس کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کی کال نہیں لگتی کیونکہ فون خراب تھا۔ پھر ایک چور وہاں پر آ جاتا ہے اور سینٹا اسے پیچھے سے حملہ کر کے گرا دیتا ہے۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو سینٹا اپنی جادوئی چھری اس کے اندر گھونپ دیتا ہے
है, लेकिन वो जादू था इसलिए चोर को कुछ नहीं हुआ। फिर सेंटा इसे गोली मारकर कत्ल करता है और लात मारकर फेंक देता है और कुछ देर इनकी लड़ाई चलती रहती है। लेकिन फिर सेंटा एक बिजली की तार इसकी आंख में घोंप देता है और जैसे ही सेंटा इसका स्विच ऑन करता है, रोशनी जलने की वजह से इसे करंट लगता है, जिससे इसका सर जल जाता है और चोर वहीं पर मर जाता है। सेंटा को इसे एक वॉकी टॉकी मिलती है, इसमें ट्रीडी की आवाज आती है। सेंटा अपनी लिस्ट चेक करता है जिसमें ट्रीडी का नाम अच्छे लोगों की फुर्सत में होता है, इसलिए सेंटा ट्रीडी से कहता है कि ये चोर मेरी फुर्सत के मुताबिक बुरे लोगों में है और मैं तुम्हें बचा लूंगा, साथ ही मैं तुम्हारे खानदान को भी बचा लूंगा। फिर सेंटा सिक्योरिटी रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ एक मुर्दा सिक्योरिटी गार्ड पड़ा है, जो जाहिर है कि स्क्रोज ने इसे मारा है। फिर वॉकी टॉकी पर सेंटा सुनता है कि स्क्रोज अपने आदमियों से बात करने की कोशिश कर रहा है। सेंटा इसे कहता है कि मैं सेंटा हूँ, मेरी बात सुनो, तुम्हारे एक आदमी को मैंने मार दिया है। लीडर समझता है कि ये असली सेंटा नहीं बल्कि नकली सेंटा है। सेंटा देखता है कि इसके जिस्म से खून बह रहा है, लेकिन इसे अपनी फिक्र से ज्यादा इस खानदान की फिक्र है। स्क्रोज ट्रडी की दादी को मारता है और इससे पूछता है कि तुमने यहाँ कौन सा सेंटा क्लॉज बुलाया है। वो जवाब देती है कि मैंने कोई सेंटा क्लॉज नहीं बुलाया। अब स्क्रोज ट्रडी के वालिद की उंगली तोड़ देता है और इसकी माँ से सच बुलवाने की कोशिश करता है। फिर ट्रोडी बहुत मासूमियत से कहती है, ऐसा ना करे अंकल, वरना सेंटा आपको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर ट्रोडी के वालिद इसे कहते हैं कि बेटी, सेंटा क्लॉज असल में नहीं होता, हकीकत में वो सिर्फ कहानियों में पाया जाता है। ये सुनकर ट्रोडी को बहुत बुरा लगता है, वो गुस्से में वहाँ से भाग जाती है। फिर एक चोर लड़की इसे ढूंढने के लिए इसके पीछे जाती है। स्क्रोज छुपकर सेंटा से दोबारा वॉकी टॉकी पर बात करता है और कहता है कि सेंटा असली नहीं होते। सेंटा जवाब देता है, सब वालिदैन यही कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं जरूरतमंद बच्चों के लिए तोहफे लेकर आता हूँ। स्क्रोज पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम कि किस बच्चे को ज्यादा जरूरत है। सेंटा जवाब देता है कि ये क्रिसमस का जादू है और मुझे नहीं मालूम ये कैसे काम करता है, मुझे बस ये करना होता है। हमें पूरा खानदान दिखाया जाता है जहाँ एक चोर इनसे कहता है कि आप आपस में तोहफे बांट सकते हो क्योंकि ये आपकी आखिरी क्रिसमस होगी। सब एक दूसरे को तोहफे देने लगते हैं। जब ट्रडी के वालिद अपनी माँ को तोहफा देते हैं तो वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं, इनकी आंखें बढ़ आती हैं। इधर सेंटा एक कमरे की तरफ जाता है, लेकिन एक चोर लड़की इसे देख लेती है, जिसे देखकर सेंटा वहाँ से भाग जाता है। चोर लड़की अपने शोर स्क्रोज को इशारा देती है, जो वहाँ पहुँचकर धमाका करता है। सेंटा धमाके से बच जाता है, लेकिन ये लोग इसे पकड़कर बांध देते हैं। स्क्रोज सेंटा को बैग उठाकर आग में फेंक देता है। ये देखकर सेंटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तमाम चोरों के नाम लेना शुरू कर देता है। एक चोर कहता है कि कैसे मालूम है तुम्हें हमारे ये नाम। सेंटा जवाब देता है, मेरा नाम सेंटा क्लॉज है और मुझे सब कुछ पता है। जब स्क्रोज इसे गोली मारने वाला होता है तो इस कमरे में बर्फ गिरने लगती है, जो ट्रडी ऊपर वाली मंजिल से फेंक रही होती है। स्क्रोज कहता है कि एक मिनट, ये बर्फ नहीं बल्कि जाग है। और जब इसका ध्यान बढ़ता है तो सेंटा अपनी कुर्सी से गिरकर भाग जाता है और चिमनी के जरिए ऊपर चला जाता है। ये देखकर तमाम चोर और स्क्रोज बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सेंटा देखता है कि घर के बाहर एक सिक्योरिटी टीम इसे बचाने के लिए आ रही है। फिर घर के अंदर ट्रडी के अंकल खिड़की तोड़कर बाहर निकलता है और टीम के पास पहुंचकर इनसे मदद मांगता है और इन्हें सब कुछ बता देता है। लेकिन जो भी इसके साथ होता है वो इसने सोचा भी ना था, क्योंकि टीम का बड़ा इसे गोली मार देता है। यहाँ हमें ये मालूम होता है कि वो असल चोरों की अपनी टीम थी, ना कि सिक्योरिटी टीम। फिर स्क्रोज अपनी टीम को कहता है कि घर के अंदर एक पागल आदमी है जो सेंटा बनकर हमारी मुखालफत कर रहा है और हमारे साथियों को मार रहा है, इसलिए वो सेंटा को ढूंढने लगते हैं। स्क्रोज अपने साथियों के साथ तहखाने में आता है और सेफ को चेक करता है, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ कोई पैसा नहीं है, तमाम पैसा गायब हो चुका है, पूरा सेफ खाली है। इस वक्त सेंटा स्क्रोज से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा होता है। वो कहता है कि यहाँ बहुत से लोग जो मेरी फुर्सत में बुरे लोगों में शामिल है, अब मैं इन्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम्हारे खानदान को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा। ये सुनकर ट्रडी अफसुर्दा हो जाती है और कहती है कि अगर आप एक ख्वाहिश मांग सकते हैं तो वो क्या होगी। सेंटा कहता है कि मैं अपनी बीवी को दोबारा देखना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। सेंटा अपनी उंगली से अपनी शादी की अंगूठी निकालता है, लेकिन वो अंगूठी गिर जाती है। जब वो अंगूठी लेने जाता है तो इसे एक हथौड़ा मिलता है और अब सेंटा हथौड़ा उठाकर कहता है कि अब मैं तमाम बुरे लोगों को मारकर बदला लूंगा। ये सुनकर ट्रडी बहुत खुश हो जाती है। फिर स्क्रोज की टीम सेंटा के कमरे में दाखिल होती है। सेंटा हथौड़े की मदद से सबको एक एक करके बेरहमी से कत्ल कर देता है। दूसरी तरफ स्क्रोज खानदान के पास आता है और कहता है कि यहाँ कोई है जिसने तमाम पैसा चुरा लिया है और अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि किसने किया है तो मैं सबको एक एक करके
मार डालूंगा। स्क्रोज का गुस्सा बढ़ता है और वो ट्रडी के माँ को पकड़कर इस पर बंदूक तान देता है। ये देखकर ट्रडी के वालिद आगे आते हैं और कहते हैं कि मैंने पैसा चोरी किया ताकि मैं अपनी बीवी और बेटी के साथ हमेशा के लिए यहाँ से भाग जाऊं। दूसरी तरफ दो चोर ट्रडी को ढूंढ रहे होते हैं। एक चोर सीढ़ियाँ चढ़ता है लेकिन एक सीढ़ी टूटी हुई होती है और इसके मुंह में कील घुस जाता है। फिर चोर लड़की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाती है और ट्रडी को देखती है, लेकिन ट्रडी इस चोर को एक गेंद से मारती है। एक गेंद लड़की को लगती है और दूसरी सीढ़ी पर खड़े चोर को लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। ट्रडी चोर पर गेंदें फेंकती रहती है। चोर के हाथ में एक कील होता है, गेंद कील पर लगती है और वो इसके सर में धंस जाता है, जिससे वो मर जाता है। फिर ट्रडी लड़की पर हमला करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है जहाँ पर गिलू गिरा हुआ था। लड़की का पूरा जिस्म गिलू से ढक जाता है, लेकिन वो एक मुजस्मे की तरह खड़ी हो जाती है, लेकिन इसका सर भी कट चुका होता है और इस हालत में ट्रडी को पकड़ने के लिए जाती है। लेकिन फिर सेंटा सामने आता है, जो पहले इस लड़की पर एक राड से हमला करता है और फिर इसे मारता रहता है कि यहाँ तक कि वो मर जाती है। वहाँ ट्रडी का वालिद स्क्रोज को इस जगह ले जाता है जहाँ इसने पैसे छुपाए थे। अब स्क्रोज को अपने पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो अब भी गुस्से में सबको मारने का फैसला करता है। यहाँ एक चोर सबसे पूछता है कि सबसे पहले कौन मरना चाहता है। यहाँ सब बहस करने लगते हैं कि इनका नाम लिया जाए। ये दरअसल इनका मंसूबा था और अब वो चिलक्की से चोर को मार देते हैं। फिर ट्रडी भी सेंटा के साथ आती है और सब यहाँ से भागने लगते हैं। वो इस बात पर भी खुश होते हैं कि इसके तमाम खानदान के अफराद जिंदा और महफूज हैं। स्क्रोज सबको मारने का इरादा करता है और वो सब लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। फिर सेंटा यहाँ पर आता है और अपने बड़े हथौड़े से चोरों को मारना शुरू कर देता है। स्क्रोज पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। सेंटा ने इसे देख लिया था और अब वो भी इसका पीछा करने लगता है। एक चोर ट्रडी के वालिदैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों किसी तरह इसका सामना करते हैं और आखिरकार इसे मार देते हैं। चोर को मारने के बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये देखकर ट्रडी खुश नहीं होती, क्योंकि वो भी चाहती थी कि इसके वालिदैन हमेशा के लिए एक साथ रहे। लेकिन स्क्रोज सेंटा का इंतजार कर रहा होता है। सेंटा इतनी तेजी से आ रहा होता है कि इसकी गाड़ी एक दरख्त से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाता है। स्क्रोज के हाथ में सेंटा की फुर्सत आ जाती है और वो देखता है कि इसका नाम बहुत ज्यादा बुरे लोगों की फुर्सत में शामिल है। इसे समझ आ जाता है कि ये वाकई असली सेंटा है, लेकिन वो फिर भी यकीन नहीं करता। स्क्रोज सेंटा से कहता है कि इसकी जिंदगी का मकसद इस दिन का इंतजार करना था, वो आज आ ही गया है। ये असली सेंटा मेरे सामने है। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो ये क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद इन दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। शुरू में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, फिर स्क्रोज इसे मार देता है, लेकिन फिर सेंटा स्क्रोज को पकड़ लेता और अपनी ताकत से इसके जिस्म को जला देता है और इसकी जली हुई लाश को नीचे फेंक देता है। जब सेंटा टावर पर खड़ा होता है, स्क्रोज के एक आदमी सेंटा को गोली मार देता है और सेंटा नीचे गिर जाता है, लेकिन फिर ट्रडी की दादी आती है और इसे गोली मार देती है। बाकी लोग सेंटा के पास आते हैं और ट्रडी अपने माँ बाप को कहती है कि सेंटा को अस्पताल ले जाओ। फिर सेंटा कहता है कि मैं कई सालों तक अपनी जिंदगी जी चुका हूँ और ये मेरा आखिरी वक्त है, क्योंकि मैं चाहता था कि ये मेरी आखिरी क्रिसमस हो। ये कहकर वो मर जाता है और ट्रडी बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि ये असली सेंटा क्लॉज है और मैं इस पर यकीन करती हूँ। ट्रडी के माँ बाप कहते हैं कि हम भी अब इस पर यकीन करते हैं। इसके बाद खानदान के हर फर्द कहता है कि हाँ, मैं भी सेंटा पर यकीन करता हूँ। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सेंटा दोबारा जिंदा हो जाता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और इससे इसकी वजह पूछते हैं। सेंटा कहता है कि ये क्रिसमस का जादू है और मुझे नहीं मालूम कि ये काम कैसे करता है। मेरा काम सेंटा बनना और अपना काम करना है और मुझे ये काम तब तक करना चाहिए जब तक मुझे हुक्म न दिया जाए। फिर सेंटा की सवारी आती है और वो ट्रेडी से मिलता है और इसे अलविदा कहता है और अपनी सवारी में बैठकर वहां से उड़ जाता है। वो अपने दिल में सोचता है कि मैं एक अच्छा सेंटा बनकर काम करूंगा और बुरे लोगों को मारूंगा। और इसके साथ ही इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।